অহা 27 তাৰিখে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মাননীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া বৰপেটা লোকসভাৰ অন্তৰ্গত সৰ্বুক ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলুৰগুৰিত কয়াকুছি বজাৰ আৰু টাপাৰ মাজভাগৰ ফুলুৰগুৰিত এখন বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰিব। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ লগত উপস্থিত থাকিব সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, অসমৰ সুসন্তান সাংসদ আৰু এইবাৰৰ পাৰ হৈ যোৱা যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পদপ্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, AICC ছেক্ৰেটাৰী পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দেৱবায়ন ডাঙৰীয়া আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে উপস্থিত থাকিব। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ বৰপেটা লোকসভাবাসী আৰু অসমবাসীক উক্ত বিশাল জনসভাত উপস্থিত থকাৰ বাবে সকলোলৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ, অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আমি আশাবাদী 50,000ৰ ওপৰৰ ৰাইজে উক্ত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ছেকেণ্ড ফেজত কেইখন আসন পাব কংগ্ৰেছ? ছেকেণ্ড ফেজ, প্ৰথম ফেজ হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড ফেজ 26ত হ'ব, থাৰ্ড ফেজ 7 হ'ব। যিটো বাতাবৰণ মই দেখিছোঁ অসমৰ একেবাৰে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ, উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ এইকেইদিন বিভিন্ন ঠাইত গৈ আছোঁ। বিজেপিৰ বেয়া, AGPৰ বেয়া, UDFৰ বেয়া। অসমত বিজেপিৰ যদি বেয়া হয়, AGPৰ বেয়া হয়, UDFৰ যদি বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লেতো জয়যুক্ত কংগ্ৰেছেই হ'ব। আমি আশাবাদী 14টা লোকসভাতে 13টাত আমি এটাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ জয়যুক্ত হ'ম। প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভোট নালাগে বুলি প্ৰচাৰ দিছিল 21ৰ বিধানসভাত। এইবাৰ 24ৰ সেই কথা কিন্তু বিপৰীত হৈছে। পাকা বেতবাৰীতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব। চাওক, ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। এবাৰ যিসকলে কয় ভোট নালাগে, আকৌ কয় ভোট লাগে, দিয়া মানুহখিনিয়ে বিচাৰ কৰিব যে কি কৰিব পাৰি। সাধাৰণ ৰাইজৰ বিবেক বুদ্ধি আছে, গতিকে বিবেক বুদ্ধি থকা ৰাইজৰ ওপৰত আমি আৰু জোৰকৈতো কিবা ক'ব নালাগে। ৰাইজে জানে, বুজে। আমিতো যদি কাৰোবাক বুৰ্বক বুলি ভাবোঁ সেয়া ভুল। অসমৰ প্ৰতিজন ভোটাৰ সজাগ হৈছে। ভোটাৰে জানে কাক ভোট দিব লাগে। ভোটাৰে জানে কোনজনে কথা কৈ কথা ৰাখে, কোনজনে কথা কৈ কথা নাৰাখে। গতিকে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। প্ৰতাৰণা যিসকলে কৰিছে, যিসকলে কথাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে, তেওঁলোকক এবাৰ বিদায় দিব ৰাইজে। अब क्या कहना है उनके बारे में जो कहना है वो आपके मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी कह चुके हैं। उन्होंने तो पूरी मीडिया में कहा है, बाकायदा बाइट दी है कि अजमल जी मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। वो हर विधानसभा चुनाव में मैं जहां बोलूं वहां 2-4 सीट मेरे हिसाब से दे देते हैं। जब भी राज्यसभा चुनाव आता है मेरे कहने पे मैं जिधर बोलूं उधर वोट दे देते हैं अपने पार्टी के MLA से। और इसके बारे में और क्या आपको खुलासा चाहिए? दूसरी बात ये है कि जब आप सब लोगों को मालूम होगा कि आपके मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर भाषण देते हैं और उसमें कहते हैं कि मैंने असम में इतने सारे मदरसे तोड़ दिए, मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं, आतंकी तैयार होते हैं। ये सब वक्तव्य करने वाले आपके मुख्यमंत्री, और उनके बारे में अजमल के भाई सिराजुद्दीन जी कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा मुख्यमंत्री आसाम के इतिहास में नहीं हुआ। अब इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये जैसे बीजेपी हिंदूवाद की राजनीति करती है, ये मुसलमानों की राजनीति करती है, और वोट लेने के बाद हम सब भाई मिल के बांट के खाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया लेवल में आप लोग का कितना आ रहा है? 400 पार देखिए, मोदी जी का क्या है कि वो जिस प्रकार की बातें करते हैं आपको तो पता ही है। झूठ बोलने का उनका
हिंदुस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ना पहले हुआ है ना इसके आगे होगा, ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने सेट करके दिया है। और जहाँ तक बात है 400 पार की, तो वो 600 पार भी बोल सकते हैं, उनका क्या है। ये रही एक बात। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये 400 पार वो इसलिए कह रहे बार बार कि इनके जो पूर्वज हैं आरएसएस के, इन्होंने जो लिख के रखा है गोलवलकर गुरुजी ने और बाकी सारे इनके विचारवादों ने। देखिए, आरएसएस की विचारधारा मतलब बीजेपी की विचारधारा, और बीजेपी की विचारधारा मतलब नरेंद्र मोदी की विचारधारा, और आरएसएस की विचारधारा कहती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब ये हिंदू राष्ट्र इनको बनाना है तो पहले तो संविधान बदलना होगा, और संविधान बदलने के लिए इनको 400 पार जाना होगा। इसीलिए ये बार बार 400 पार करते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ इस देश की जो जनता है इस बार बहुत दुखी है, अंदर से बहुत त्रस्त है, क्योंकि उनको इतना पीड़ित किया गया है महंगाई से, बेरोजगारी से, जीएसटी लगाकर, कि वो इस बार ज़रूर मोदी जी को 400 पार नहीं 200 पार भी नहीं जाने देंगी। आपने असम में भी देखा होगा कि अपर असम में जब चुनाव हुए तो उस बौखलाहट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जागी रोड में भी ऑफिस हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तोड़ दिए। उनको इसकी भनक लग गई थी तो डिब्रूगढ़ का जो कैंडिडेट है लोरिन ज्योति, उसके कार्यकर्ताओं के घर वोटिंग के पहली रात को जला दिए। तो ये किस बात के संकेत है कि जब आदमी, इंसान के सारे विकल्प जब ख़त्म हो जाते तब वो हिंसा पे उतर आता है। और ये बीजेपी इनकी ये सब करतूतों से, इन हरकतों से दिखा रही है कि इनका खेल अब ख़त्म होने वाला है। और हमारे बाकी सूत्रों से भी, जो हमारे पार्टी के इंटरनल सर्वेज है, बाकी भी जो मीडिया के साथी है, इनके माध्यम से भी जो जानकारी हासिल आ रही है कि जो फर्स्ट फेज़ में 102 जगहों पर चुनाव हुआ है उसमें इंडिया अलायंस को कम से कम 70% सीट मिलने जा रहे हैं। तो ज़रूर इस देश में इस बार बदलाव होगा। इस देश की जनता जान चुकी है कि मोदी की गारंटी मतलब जुमला। जैसे पहले भी गारंटियाँ दी थी, उस गारंटी में एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए, बल्कि जब पेट्रोल के दाम 50 बोला करूँगे तो उन्होंने डबल ही कर दिए। गैस का सिलेंडर का दाम जब 400 था कांग्रेस के टाइम में, उसको बोल रही थी कि मैं कम करूँगा, उसको 1500 कर दिया। तो ये सब जानते हैं। जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मामला है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन आपके बगल के स्टेट में मणिपुर में महिलाओं के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ इतना दुष्व्यवहार वहाँ पर हुआ, लाखों लोगों को मारा गया। मोदी जी असम 5 बार 10 बार आके गए, विदेशों में कई बार जाके आए, लेकिन मणिपुर में जाने के लिए उनको 10 मिनट का टाइम नहीं मिला। तो इनकी सारी बातें जुमला है।